Good morning, student. Welcome in your bio class. So, we are going on in chapter 13, Why Do We Fall Ill? Where we have read a lot of points from this chapter. Again, we will revise the following chapter, following points which we have discussed in this chapter. First, health and its failure, the significance of health, then person and community issues both matter for health. 13.1.2, 13.1.3, distinctions between the health and the disease free. We have also discussed activities 13.2, 13.3, then acute and chronic disease and its cause, then activities survey. After that, chronic disease and poor health. These terms we have already discussed. Then causes of disease, then infections and non-infections causes. So we will start today's lecture from infections and non-infections causes. So student, some disease that are spread by contact of contact with the sick person, some disease that is not spreaded by with the sick person. So disease that is infected, it is called infected disease. The disease which is not spreaded by infected person is called non-infected disease. Things to ponder: do all disease spread to people coming in contact with a sick person? क्या ऐसा होता है कि सभी डिजीज़ सिक पर्सन के आने से सिक पर्सन के कांटेक्ट से फैलती हैं? व्हाट आर द डिजीज़ दैट आर नॉट स्प्रेडिंग? ऐसी कौन सी डिजीज़ हैं जो इस तरीके से स्प्रेड नहीं होती हैं? हाउ वुड अ पर्सन डेवलप दीज डिजीज़ दैट डोंट स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विद अ सिक पर्सन? तो वो पर्सन में इस तरीके के डिजीज़ किस तरीके से फैलती हैं जो कि किसी भी जो कि स्प्रेड नहीं होती हैं सिक पर्सन के आने से? तो दीज आर द सम क्वेश्चंस. नाउ वी हैव डिस्कस पेप्टिक अल्सर एंड नोबेल प्राइज. पेप्टिक अल्सर जो स्टमक में पेन होता है ना, वो दिस इज कॉल्ड एज एसिड ज़्यादा सिक्रेशन से जो स्टमक में इंजरी जो क्रिएट हो जाती है, दिस इज कॉल्ड एज पेप्टिक अल्सर. देन दिस क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस infectious disease or infectious disease. We have seen that the entire diversity seen in living world can be classified into few groups. The classification is based on common characteristics between different organisms. Organisms that can cause disease are found in wide range of such categories of classification. Infectious agents basically क्या है? It is a living things. ठीक है ना, एक organisms है. तो infections जो है बेसिकली infectious agents को बेसिकली क्लासिफाइड किया है कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर पर. वो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस कि कुछ कॉमन कैरेक्टर पर उनको क्लासिफाइड किया है. Organism that can causes disease are found in a wide range of such categories of classification. और उनको क्लासिफिकेशन के बेस क्लासिफिकेशन का जो बेस लिया उसके अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइन किया है. कुछ उसमें वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंगी हैं, कुछ सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया हैं. ठीक है, दीज कुछ प्रोटोजोआज हैं. सम डिजीज आर कॉज्ड बाय मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज वर्म्स. तो ये डिफरेंट टाइप के जो एजेंट्स हैं जो कि डिजीज़ को स्प्रेड करते हैं. तो कौन कौन से एजेंट्स हैं? वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, देन थर्ड वन प्रोटोजोआ है, फोर्थ वन फंगी है, फिफ्थ वन सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक वर्म्स हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्म्स.
तो ये सब इन्फेक्शंस क्रिएट करते हैं. दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड एज इन्फेक्शियस एजेंट्स. देयर आर सम फिगर इज गिवन देयर. फिगर ये डिफरेंट फिगर हैं. इसमें ये फर्स्ट वन इज सार्क, दिस वन इज वायरस. फर्स्ट वन इज वायरस. This one is virus. Second figure, it is bacteria. Third figure is Trypanosoma protozoa. Fourth figure, fourth figure is related to this one, this figure. It is Leishmania, again protozoa. And this one is worms. ये जो फिगर है ये किसका है? राउंड वर्म्स. तो ये फिगर क्या शो कर रहे हैं? दीज आर इन्फेक्शियस एजेंट्स. ये इन्फेक्शंस स्प्रेड करते हैं. कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय वायरस इज कॉमन कोल्ड. वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर और एड्स. Disease like typhoid fever, cholera, tuberculosis, or anthrax are caused by bacteria. So this one is viral disease. This one is tuberculosis, anthrax, typhoid, fever, cholera, bacterial disease. Skin infections caused by different kinds of fungi. Protozoa microbes may familiar disease such as malaria and kala azar. Some interstitial disease, it is by worm infection like elephantiasis is caused by different species of worms. So in this paragraph you will read different type of infectious agents. ठीक है, ये infectious agents and their disease. Clear? अब इस सेकंड क्वेश्चन उठता है, व्हाई आर इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दिस कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट्स. द आंसर इज दिस कैटेगरीज आर इम्पोर्टेंट फैक्टर टू डिसाइडिंग व्हाट काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज़. जितने इन्फेक्शियस फैक्टर जितने और इन्फेक्शियस पैथोजेंस जितने एजेंट्स जितने डिफरेंट टाइप के होंगे उनका ट्रीटमेंट भी डिफरेंट टाइप का होगा. ठीक है, तो ट्रीटमेंट इसलिए डिफरेंट होते हैं. वायरल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट अलग होते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ के अलग होते हैं. क्यों? क्योंकि उनका मोड ऑफ जो बायोकेमिस्ट्री है वो डिफरेंट है. क्लियर? ऑल वायरसेस लिव इनसाइड. फॉर एग्जांपल्स वायरसेस क्या है? अपने आप में अलाइव नहीं है, ये होस्ट में रहते हैं. ठीक है, तो बैक्टीरिया ऐसा नहीं करते हैं. बैक्टीरिया की अपनी मैकेनिज्म यूज़ करते हैं. वायरस, बैक्टीरिया, फंगी मल्टीप्लाई क्विकली. तीनों में एक कॉमन कैरेक्टर क्या है कि तीनों मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होते हैं. वाइल वर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली इन कंपेरिजन. और वर्म्स धीरे धीरे मल्टीप्लाई होते हैं. तो ये इनका अपना पर्टिकुलर एक नेचर होता है जिससे इनका जो कॉज ऑफ डिजीज़ सिम्टम्स भी डिफरेंट होने लगते हैं. एंड मोड ऑफ एक्शन जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं वो इनके बिहेवियर पर डिपेंड करता है. ठीक है, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के और इन्फेक्शियस फैक्टर के बिहेवियर पर, इन्फेक्शियस एजेंट्स के बिहेवियर पर डिपेंड करता है. क्लियर? दिस मीन्स दैट मैनी अदर मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप बट द सेम ड्रग्स विल नॉट वर्क. लेकिन सबके लिए सेम ड्रग्स नहीं हो, ओबियसली सेम ड्रग्स नहीं होगी क्योंकि सबकी जो बायोकेमिकल जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है और वो डिफरेंट ग्रुप में है. एज एग्जाम्पल्स
लेटेस्ट एंटीबॉडीज़, यदि हम एक बायोटिक्स ले रहे हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं बेसिकली बायोकेमिकल पाथवे को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे बैक्टीरिया की जो इन्फेक्शियस स्टेज आने वाली रहती है उस स्टेज को ही ब्लॉक कर देते हैं। क्लियर? जैसे फॉर बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का क्या है बेसिकली कि सेल वॉल बैक्टीरिया को पूरा प्रोटेक्ट कर रही है। तो एंटीबायोटिक, फॉर एग्जांपल्स वी टेक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, तो क्या करेगा, इट विल बी ब्लॉक द बैक्टीरियल प्रोसेस दैट बिल्ड द सेल वॉल। वो बैक्टीरिया की उस प्रोटेक्टिव जो लेयर है जिससे कि बैक्टीरिया प्रोटेक्ट हो, उसको वो ब्लॉक कर देगा, उसको बनने नहीं देगा। ठीक है, तो ग्रोइंग बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया बनेंगे उनकी सेल वॉल नहीं बनेगी, और वो सेल वॉल जब नहीं होगी दे डाई ईजली। सो ऑन द दिस मैकेनिज्म ड्रग्स वर्क. How drugs works against any disease, the mechanism behind it. Some drugs directly block biochemical reaction, some drugs block pathogenic stage. तो इस तरीके से जो ड्रग्स हैं वो इन्फेक्शियस एजेंट्स के नेचर पर फॉर्म होती हैं और उनके बिहेवियर पर फॉर्म होती हैं. Penicillin will have this effect on any bacteria. They use such process by making cell wall. Similarly, many antibiotics work against many species of bacteria rather than simple working one. Clear? अब क्वेश्चन ये होता है, why virus do not use this pathway at all? वायरस के लिए ये वाली ड्रग्स क्यों नहीं यूज़ होती हैं, और ये वायरस ये पाथवे को, एक्चुअली वायरस इस पाथवे को यूज़ नहीं करता, जो बैक्टीरिया करता है वो वायरस नहीं करता है. दैट्स अ रीज़न वाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन. दोनों का पाथ वर्किंग अलग है बॉडी के अंदर, इसलिए उनकी जो मेडिसिन है वो भी अलग होगी. दैट्स अ रीज़न कि जो बैक्टीरियल एंटी ड्रग्स होती हैं वो वायरस के अगेंस्ट वर्क नहीं करती. इफ़ वी हैव कॉमन कोल्ड, taking antibiotics does not reduce survivability of the durations of disease. However, if we get a bacterial infection along with a viral cold, taking antibiotics will help. Even then, the antibiotics will work only against the bacterial part of infections. ठीक है, यदि ये बैक्टीरियल और वायरल दोनों एक साथ हो रहा है और इसमें एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो वो वर्क करेंगी, लेकिन वायरल इन्फेक्शंस में वर्क नहीं करेंगी. क्लियर? सो दीज आर द रीजन्स. क्वेश्चन ये इस तरीके के काफ़ी आते हैं, इसको आप रीड कर लोगे. अब आता है मीन्स ऑफ स्प्रेड, कहाँ से ये डिजीज़ हो रही है. इन्फेक्शन डिजीज, हाउ डू इन्फेक्शन डिजीज स्प्रेड. तो फर्स्ट इट इज़ कम्युनिकेशंस डिजीज़, जो कम्युनिकेट हो रही हैं. ठीक है, द many microbial agents are commonly moved from affected person to someone else in variety of way. In other words, they can be communicated. They are also called communicable disease. Such disease causing microbes can be spread through the air. जो एयर के थ्रू हो रही है एयरबॉर्न, और ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से बॉडी में एंटर होगी. ठीक है, लिटिल ड्रॉपलेट्स के थ्रू. इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीज और कफ, समवन स्टैंडिंग इज क्लोज बाय कैन ब्रीथ. यदि एक इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, वो स्नीजिंग के थ्रू वो उसके कुछ ड्रॉपलेट्स, सम ड्रॉपलेट्स कम आउट फ्रॉम देयर माउथ. दीज ड्रॉपलेट्स विल go in air and any healthy person will breathe there. The droplets will be moved in that particular person through their respiratory tract. Clear? तो droplets breathing के थ्रू जा सकते हैं. These microbes get chance to start new infection, और इनको एक होस्ट मिल जाएगा और ये नया इन्फेक्शन इसमें शुरू हो जाएगा. This disease is spread through by air. So it is एयर के थ्रू होने वाले डिजीज, कॉमन कोल्ड, निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस. सो एयरबॉर्न डिजीज कौन कौन सी हो गई? कॉमन कोल्ड,
निमोनिया और ट्यूबरक्यूलोसिस। क्लियर। सेकंड कंडीशंस आती है, ये एक फिगर भी दिया हुआ है। एयर ट्रांसमिटेड डिजीज़ किस तरीके से हो रही है, ये इन्फेक्टेड पर्सन है तो ये जो भी स्नीजिंग के थ्रू जो भी ड्रॉपलेट्स होंगे, स्मॉल ड्रॉपलेट्स होंगे, एवापोरेट टू ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियाई इन द जोन, ये एक जोन फॉर्म कर लेते हैं और अकॉर्डिंग दैट ये अपने अपने डिस्टेंस पर गिरते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिजीज़ जब एयर इसके पैथोजेंस जब एयर पर जाएंगे तो एयर ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो जाएगी। एयर ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर easier to catch the closer we are to infected person. However, in closed area, the droplets nuclei recirculated and pose a risk of everybody. Overcrowded and poorly ventilated housing is therefore a major factor. क्या है, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है और रूम्स में वेंटिलेशंस वगैरह नहीं है, वो इस तरीके की डिजीज़ के वो इस तरीके की डिजीज़ में ज़्यादा फैल सकती है। पुअर वेंटिलेशंस, पुअरली वेंटिलेटेड हाउसिंग, डिजीज़ कैन बी स्प्रेड थ्रू वाटर। जो वाटर के थ्रू जो डिजीज़ हो रही है, दिस इज़ कॉल्ड एज वाटर डिजीज़। और वाटर डिजीज़ जनरली किसके थ्रू बॉडी में एंटर होगी, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू। ऑकर इफ द excreta from someone suffering from infectious gut disease such as chlorella। कौन सी डिजीज वाटर के थ्रू हो रही है, क्लोरेला, क्लोरेला। ठीक है, कॉजिंग इट इज़ वाटर डिजीज और पॉल्यूटेड वाटर से ये डिजीज स्प्रेड होती है। सच डिजीज आर मच मोर likely to spread in the absence of safe supply of drinking water। ठीक है, थर्ड आता है सेक्सुअल एक्ट इज द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। क्लियर। तो नो सरप्राइजिंग देयर इज सम डिजीज जो क्लोजर कॉन्टैक्ट से हो रही है, इट इज सिफिलिस और एड्स। It is spread by sexual contact from one partner to other partner. The sexually transmitted disease are not spread by causal physical contact, लेकिन physical contact से नहीं। ठीक है, जैसे किसी को टच करने से नहीं होगी। causal physical contacts include handshake और hug और sports like wrestling और by any of the other ways which we have touched। जो फिजिकली जो टच है, हैंड से हैंड टच करना या हग के थ्रू, ठीक है, इससे ये डिजीज़ स्प्रेड नहीं होगी। ये डिजीज़ किससे स्प्रेड होगी, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। द एड्स वायरस कैन ऑल्सो स्प्रेड थ्रू ब्लड टू ब्लड, क्योंकि एड्स वायरस ब्लड किसके थ्रू जा रहा है, ब्लड टू ब्लड। और एड्स वायरस का जो टारगेट ऑर्गन है वो ब्लड है। ब्लड पर ये जाके ब्लड की WBC को डिस्ट्रॉय करने लगता है और उसकी जो इम्यूनिटी पावर को धीरे धीरे वीक करने लगता है। इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है इम्यूनिटी पावर कि वो छोटे से भी डिजीज़ को, छोटे से भी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी बियर नहीं कर पाती और बॉडी उससे अफेक्टेड होती जाती है। तो कई सारे सिम्टम्स एक साथ अपीयर होने लगते हैं एड्स पेशेंट्स में। क्लियर। Now we have in environment is full of many other creature apart from it. It is inevitable and many disease will be transmitted by other animal, जो animal के थ्रू हो रही है। ठीक है, ये एनिमल के थ्रू, दीज एनिमल कैरी द इन्फेक्टेड एजेंट्स, क्योंकि ये एनिमल कुछ इफ़ेक्ट्स को लेके, जैसे फॉर एग्जांपल्स डॉग के थ्रू होने वाली रेबीज़, मॉस्किटो के थ्रू होने वाली मलेरिया, प्लाज्मोडियम के थ्रू हो रही है। ठीक है, दीज आर द सम डिजीज़ जो कि मॉस्किटो, हाउस फ्लाई के द्वारा होने वाली डिजीज़। सो दीज आर द सम डिजीज़ जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से हो रही है। क्लियर स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज
organ specific and tissue specific manifestations. organ specific और tissue specific, ये इसका मतलब क्या है कि कुछ जो पैथोजेंस होते हैं पर्टिकुलरली टारगेट ऑर्गन्स पर इफ़ेक्ट करते हैं, कुछ टिश्यूज स्पेसिफिक होते हैं. तो व्हाट इज दिस, लेट अस वी डिस्कस. द डिजीज कॉजेज माइक्रोब्स एंटर द बॉडी थ्रू दीज डिफरेंट मीन्स. हमारी बॉडी में जो पैथोजेंस हैं अलग अलग मीन्स से एंटर हो रहे हैं. वेयर डू दे गो देन, अब उसके बाद वो कहाँ जाते हैं. द बॉडी इज़ वेरी लार्ज, क्योंकि बॉडी के बहुत लार्ज है, कहाँ उन्हें टारगेट करना है. वैन compared to these microbes, so there are many possible places. तो बहुत सारी ऐसी पॉसिबल प्लेसेस होती हैं. और अभी हम लोगों ने रीड भी किया है ना कि हर जो पैथोजन फैक्टर है, पैथोजन है, इन्फेक्टेड फैक्टर, उसकी लाइफ, उसका जो अटैक करने का जो वे होता है वो उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग होता है. तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे भी जाके इफ़ेक्ट करते हैं. तो ये डिपेंड करता है उनके बिहेवियर पर. तो वो पॉसिबल प्लेस पर जाएंगे. वो ऑर्गन हो सकता है, टिश्यू हो सकता है, जहाँ पर वो जाते हैं. ठीक है. ऑल माइक्रोब्स गो इन द सेम टिश्यूज़ और ऑर्गन. क्या सब माइक्रोब्स एक ही सेम टिश्यू पे जाते हैं और सेम ऑर्गन्स पे जाते हैं? नो, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स पे जाते हैं. वो उनका पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन होता है. डिफरेंट स्पीशीज ऑफ माइक्रोब सीम्स टू हैव इवॉल्व टू होम एट ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. उनका जो होम होता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. दिस सिलेक्शन इज कनेक्टेड टू देयर पॉइंट्स ऑफ एंट्री, और इसलिए उनकी पॉइंट ऑफ एंट्री भी डिफरेंट होती है. ठीक है. दे एंटर फ्रॉम द एयर बाय नोज. यदि एयर के थ्रू जाएगा तो नोज के थ्रू जाएगा. दे आर लकली, यदि एयर के थ्रू कोई स्प्रेड होना है तो उसका टारगेट ऑर्गन नोज ही होगा. नोज के थ्रू ही वो बॉडी में एंटर करेगा थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम, और वो लंग्स पे जाएगा. क्लियर. सो दीज आर द सम बैक्टीरियाज दैट गो इन डिफरेंट वे. नाउ we will discuss एड्स वायरस. उसका भी एक पर्टिकुलर एंट्री है थ्रू ब्लड एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स पर. क्लियर. अब प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. डिजीज़ का ट्रीटमेंट के पीछे प्रिंसिपल क्या है. तो डॉक्टर्स किस बेस पर मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, क्यों, किस बेस पर, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट. देयर आर सम, व्हाट आर द स्टेप टेकन बाय योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक. सबसे पहले, हैव यू एवर थ्रू बाय यू समथिंग फील बेटर इफ़ यू स्लीप फॉर सम टाइम्स. व्हेन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व मेडिसिन. सबसे पहले डॉक्टर्स चेक करता है. चेक करने के बाद वो कुछ पैथोलॉजिकल टेस्ट के लिए पैथोलॉजिकल टेस्ट को कंसिडर करता है कि पैथोलॉजिकल टेस्ट मुझे. आफ्टर दैट डॉक्टर डिसाइड दैट व्हाट इज़ विच टाइप ऑफ पैथोजेंस आर देयर. और जो पैथोजेंस का फॉर्म यदि डिसाइड हो जाता है उसके अकॉर्डिंगली उसमें ट्रीटमेंट शुरू होता है. सो दिस इज़ द बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट. Clear, student? So this we will start in next video, student. I hope you will understood all these points or topic. Now we will discuss next point in next video. Thank you.